Okay, so we are live. I'm just gonna add this to the UXDP and then we can just start. Mhm. Okay, apologies. There's just a bit of um yeah. Okay, we're definitely having some issues here. I'm unable to sort of link the video here. Just give me a minute. All right. Okay. So till we figure that part out, I'll start adding this. We can just start off the session. So, Assalamualaikum. Welcome to this panel, and thank you so much for being up this early on the Sunday morning. We had a conversation about food, so I think that's a good start. So we can just start off by you guys introducing yourselves. What you guys are currently doing, where have you been in the past, and then we'll sort of take it from there. So, Sabah, Ali, one of you can go start ahead. Okay, Ali, do you want Yeah. to go first? Oh, okay. Sure. So, hello everyone. Assalamu alaikum. Good morning. I hope you are having a good Sunday. I'm Ali Raza. Working at Venture Dive. I'm actually managing some products here. Uh, some of them are Islamic Finder, Azan, partially working on Munchies as well. Um, Azan and Islamic Finder are most popular globally, and I'm managing their product, their designs, marketing, and almost everything. So that's my intro. Okay, awesome. And Sabah, what about you? I'm working as a global design manager and ops manager at Keep Truckin'. While on the side, I'm working on my own agency called Dystopia. So my major focus has been Keep Truckin' and Dystopia in the past 5 years. Okay, awesome. That's pretty nice. And can you guys just tell me where did you like how did you come into design? कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है? And अभी तो like we all know where you are right now, लेकिन पीछे से like starting from the scratch, just बहुत high level. कहाँ से कहाँ है आप लोग? Oh, I never wanted to be a designer. I think that's every designer's story. But in the end, I got admission in ComSats. I wanted to be a pilot instead. I got admission in ComSats and design, and after that, it's like finding my passion there. I've never regretted it after that. In fact, I always advise everyone to go into design. It is such a vast field. You can apply every kind of field there. So from there, I had a few years where I've been working as a graphic designer initially, and then I went into Keep Truckin', and then I started my journey and started shifting into UI UX, and then product design. Okay. Majorly, Dystopia, where I do my freelance work, it has helped me a lot in transitioning from UI UX designer to product designer, and especially from graphic designer to product designer. So that's my kind of journey. Very सही सही. And it's I think काफी it's a very different career path from being wanting to be a pilot to a designer. So yeah, सही Yeah. सही. And Ali, what about you? Yeah. I've been to multiple design industries. So I started working as interior designer. Okay. That's still my passion. But before Venture Dive, I worked in PureMD, Lahore Coast Solutions, and couple of startups. And one of those startups was totally failed. If we go before that tech phase, I also worked in some design agencies.
Okay. So Very cool. that's almost 9 or 10 years ago. Oh, okay. So I love how there is a lot of diversity to what we wanted to do initially and now where we are in life. So basically, and so I think the first thing that I would want to ask is, do you remember your first design interview? मतलब किसने लिया था, कहाँ लिया था, what was it about, and like how did it go? Just the experience of it. It was Yeah. such a bad one for me. Jo, I think I was after university. I was trying to apply for a few jobs, and Okay. back then, I didn't know, like, I was just applying for the sake of applying, and I wasn't choosing the right companies which are right for me, things like that. There was no such exposure for me, so Hmm. I was applying to random companies, and there was this one random company, and they called me up, and they were like, "Okay, so what do you do?" I was like, "I do design." आपको colors का समझ आता है? I was like, what? क्या है थोड़ा सा? Yeah, and then they were like, आपको cartoons तो आप बना लेंगी. I was like, yeah, but what? So I think major वो था difference between expectation versus reality वाला scene हो गया था मेरे साथ, because I Hmm. thought they would ask me about, hey, what's typography is like, typography का क्या rules वगैरह होते हैं या फिर इस type की चीजें, Hmm. या they would actually ask me about my thesis. So if this is your portfolio, if this was your thesis, how did you come to this concept, or Hmm. things like that. But it never actually happened. Instead, they started asking me about cartoons. Okay, interesting. Nice. And what about you, Ali? So I Well, left. right. So so if are you talking about my design interview experience? Yeah. So if I remember correctly, so it was not a very good one, because I my first interview was with tech, not the tech company. It was a with ad company, advertisement company. So Okay. and they what I remember is that they put me on a computer and asked me to design something which was a kind of political poster or something. So and I did uh, terribly wrong and made a lot of mistakes, especially in the colors, because I tried to be more creative, tried to put more colors, but at the end of that session, they told me that this particular political party has specific colors and you had to follow them. So I was Okay. rejected. But Oh, if I okay. yeah, and if I tell you about the tech experience in the first tech company that I worked on, Hmm. um, so I just um, uh, tried to I spent almost a weekend, 2 or 3 days to understand how the tech works, especially the web designing at that time. So I just answered a couple of questions and just got hired. And Oh, they were nice. just looking for someone to join their team, and I just got I was lucky. So Sahi yes, hai. that was all. Basically insane. Okay, I think um, my first interview went pretty well. It was not. It had like a heavy design portion to it. It was for the service design team, but I think the second one was more on like was stakeholder management, people management, and just like in a large organization, how do you collaborate with people? So I think that for me, because coming from a pure design background, मतलब हमने सिर्फ design पढ़ा था. So in our school, so वो ये नहीं था पता कि यार engineering वालों के साथ किस तरीके से काम करना. Exposure था with my startup, but like वो नहीं था कि यार how do you work in a team setting in a large corporate organization. So I think Mm. that was like I think a bit मेरे लिए वो था कि यार okay fine, it's something beyond the technical questions as well. But it was it was a pretty interesting experience. Okay, awesome. So we're kind of done with that. And Sabah, just a question: Did you end up Did you get the job? Like, did you end up there? क्या हुआ था उसका? I got the job, but I never went for it. Okay, never mind. So you see, and what about the one that you did get? And you did go there. Uh, it was a good one. I think the interview for it was okay. It was around
typography, user experience. I never heard about user experience before that because I came from graphic designing background. So then I started looking into, okay, what's user experience is, what user interface is, how people interact with things, and all of that. So I think at my first job, I started looking into what human interaction and what actually interaction means and everything. So I think it was a good start. Okay, चलिए तो फिर बेहतरीन थी. Okay, awesome. So also like थोड़ा सा जो Facebook पे मसला चल रहा था हमारा वो भी हल हो गया, तो we're like going to be in UXDP in the next 2 minutes as well. So okay, awesome. And this bit was recorded, so I think we were At my first job, I started looking into what human interaction and what actually interaction means and everything. So I think it was a good start. सही सही. Okay. So also like थोड़ा सा जो Facebook पे मसला चल रहा था हमारा वो भी हल हो गया, so we're like going to be in. Okay, so I'm just gonna start sharing my screen as well. Okay, so and like, do you guys remember your first hiring manager? How was your experience in that as well? Because I think as a fresh graduate, yeah, somebody who's transitioning from into the design world industry, I think it matters quite a lot because your first experience stays with you for quite some time. So just a bit about that. Ali, do you want to go first? So about the hiring manager, right? My Yeah, my the hiring hiring manager. Okay. Yeah. Okay. So the first one was very patient, and he showed a lot of patience because he knew that I don't know a lot of things. So he kind of uh, told me during the interview process and even after when I got hired, that how and what should I learn and how can I improve my skills and how can I improve um, uh, the, the collaboration between me and other designers and especially with the engineers. So he helped me a lot, and that's how I've been thinking about hiring the designers as well, which we're gonna discuss in the next questions and next slides. So he was very helpful, and I still respect him a lot. Okay, बेहतरीन थी. Okay, and Sabha, what about you? I think मेरे first hiring manager थे. So there were two managers who it was a small company that I started working for. There were two managers. One of them wanted to hire me, and the other one didn't. So first one actually forced the second one to get me hired, and the second one ended up liking my work really much that he promoted me to a senior position within 6 months. And I was like, is that it? Or just getting promoted in 6 months wasn't my ideal, I think, career path or career priority. फिर वहां से मुझे आइडिया हो गया था. He, as a manager, he was really good. Uh, he was an interesting manager. Okay. I wouldn't say a We'll lot. keep it at that. Okay, we'll keep it at that. Say. Okay, so now that you guys are in the hiring manager's shoes, so you guys are definitely आप लोग अपनी जो teams हैं उनके लिए भी recruitment कर रहे हैं. So you were telling me that Keep Talking is also opening up some positions. They're currently open हैं. So we'll touch base on that as well थोड़ा सा बाद में. But so for Keep Talking or for Venture Dive, आप लोग, if you guys could just tell me कि high level process of hiring क्या होता है in your companies and how do you guys go about it? Ali, you can go first. Yeah, okay. All right. So if we talk about Venture Dive, so Venture Dive has a very defined hiring process. We start with a small phone chat, and if you pass that phase, then there are at least 2 interviews. Most of the time, the second one is with the hiring manager, who is usually our lead designer or the design manager or head of designs.
And but if you ask about my team, so I have a product team within Venture Dive. And there are product designers, product marketing people, and a lot of other functions. So I don't सही. follow that process always. I Hmm. sometimes go out of the this whole line and try to approach people directly that I find online. I either like their portfolio or their profile. I reach out to them, tell them what we are looking for. Uh, and so after a couple of casual chats or calls, I start the official process, involve HR and everyone Hmm. who should be there, and to process whatever is required next. सही. Okay, awesome. And if I were just sort of break down that in steps, so वही है कि you look at अगर कोई candidate है online, आपको उसका profile अच्छा लगता है, like the portfolio, Yeah. if they have an online visibility, and आपके एक दो interviews होंगे उनके साथ, and then because you are the associate director, right? So आपके जो ऊपर Yeah. director हैं या like in the senior management, do you have an interview with them as well? And then the HR gets involved, या फिर like No, stepwise बड़े chunks में no. कैसे होता है? Sometimes I ask my Hmm. line manager, who's also ठीक the है. co-founder of VentureLife, Yeah. to talk to the candidate. But I think most of the time I ask someone from my team, uh, Hmm. a couple of people to talk to this candidate and share their own thoughts. Especially, we have to see how they can be fit with this team culture. Are the team fit or not? So that's kind of thing like I wanted them to get understand. सही. Okay. That sounds like a fair process. Sabha, what about you? Um, Recently, I think Keep Truckin में और न्यू VP of Design joined from Uber. Hmm. तो हम लोग का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग इन रिसेंटली. तो उसमें ये होता है कि वी रीच आउट टू अ कैंडिडेट और एन ईमेल इफ वी लाइक देयर वर्क एंड एवरीथिंग, and then we ask them for a hiring manager kind of a screen, which is a 45-minute session. और Okay. उस स्क्रीन में ये होता है कि we set an expectation कि दिस इज़ अ 45-minute सेशन. उसमें आप लोगों ने हमें अपना थोड़ा सा काम प्रेजेंट करना है, वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो. और फिर उसके बाद जो उनसे होता है जर्नल फॉर्मेट यही होता है कि क्या अपना कीप ट्रकिंग का बैकग्राउंड बताते हो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. आप अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस का पूछ लेते हो, फर्दर उनसे उनके काम पे क्वेश्चंस पूछ लेते हो, आप उनका काम रिव्यू कर लेते हो जो वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अ पोर्टफोलियो फॉर्मेट. और फिर उसके बाद कैंडिडेट के क्वेश्चंस होते हैं. इफ दे passes this step, तो नेक्स्ट जो उनसे होता है वो नेक्स्ट हमारा ऑन साइट यूजली होता है. ऑन साइट अब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम है. तो ये होता है कि सिंस हम लोग सारे ही रिमोट है, तो अभी ये है कि हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू फिर होता है. जब फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है तो हमारे सीनियर सारे डिज़ाइनर्स के साथ होता है. और सीनियर डिज़ाइनर्स के साथ आपका 60 मिनट का कोई एक सेशन होता है जिसमें आपने अपना डिटेल या फिर एक किसी प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो. वो डीप डाइव होती है आपकी. फिर आपका जैम सेशन होता है एक्चुअली विद VP ऑफ डिज़ाइन. फिर उसके बाद हमारा वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं विद फ्यू डिज़ाइनर्स. ये तकरीबन कोई 3 to 4 आवर्स का प्रोसेस होता है. और वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं वर्क क्वालिटी एक्सेस करने के लिए. फिर प्रोसेस और एक्सप्लोरेशन क्या है आपकी उसको वो करने के लिए. फिर उसके बाद इफ़ यू आर kind of if you have applied for a product designer role या फिर UI UX role, तो फिर आप UX के उसमें you dig deep in you dive deep into that. और फिर उसके बाद आपका सारा वर्किंग विद रिमोट टीम्स और इन सब से क्या किस तरह से चल रही है, आपकी कोलैबोरेशन क्या होती है बाकी टीम वगैरह के साथ, टीम सॉरी बाकी टीम मेंबर्स वगैरह के साथ. और आपकी कम्युनिकेशन ओवरऑल कैसी है, आपके एथिक्स वर्क एथिक्स वगैरह कैसे है, इन सब पे आपका एक लॉन्ग सेशन होता है. वंस यू क्लियर दैट तो फिर आपके फाइनल पे ऑफर वगैरह चली जाती है. Okay, awesome. I think वो the 3 से 4 घंटे वाला it's a big interview in one day for I think a certain person.
But I think it's a very robust process. So जो आपके पास candidate end पे निकल के आ रहा है, you are like 100,000% sure of, where they're going to fit Yeah. and how they're going to fit in. I think that's pretty awesome. So I think job, if you sort of take a step back, application के process से, from like a candidate point of view, the first thing that uh, people have to fill in is the application जो होती है, and उसके अंदर there is always resume and then portfolios का link, right? So we'll start off with the resume. Portfolio के ऊपर तो जो पिछला भी session था उसके अंदर भी काफी मतलब touch base किया था, and then we have a lot of information regarding portfolios on UXDP. But I think resume इसका as such हमने अभी तक नहीं touch base किया. So what makes a good resume in your opinion? जिसको आप देख के you're able to pick it up and sort of take it forward. Yep. I think, Okay. So yeah, Saba, go ahead, please. Ali, you can go ahead. Or okay. So about the resume. So I think ये mention करना बहुत ज़रूरी है कि what you have done यानी design, especially design के अलावा, especially if you have worked in a startup, तो उसमें बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि आप जो है designing के अलावा और भी कुछ roles वगैरह कर रहे होते हैं. जैसे मैंने I used to work on some marketing or content myself. इसके अलावा मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी काम किया है. तो अगर मैं वो मेंशन करता था अपने रेज्यूमे में, तो इट वाज गुड काइंड ऑफ अटेंशन ग्रैबर, और ये शो करता था कि मैं जस्ट अपनी टाइटल तक अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा, बल्कि उससे बाहर भी जाके एंड आई एम अ काइंड ऑफ टीम पर्सन, यानी कोलैबोरेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ. सो दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चीज हम रेज्यूमे में भी देख रहे होते हैं कि आपने क्या क्या किया है रिसेंटली एंड व्हाट यू वांट टू एट द एंड ऑफ द डे डू in your career. Are you try to limit yourself to a very few things? Are you open to a lot more challenges? क्या 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 कुछ आप करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करना इन योर रेज्यूमे इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. सही सही. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज जब हम डिजाइन या किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं तो फिर हम सिर्फ डिजाइन रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस होता है, दैट्स व्हाट आई सी मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज पुटिंग इन, राइट? बट आई थिंक द डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट, मतलब जो रेज्यूमेज में बहुत ज्यादा लाइक आ भी रहा होता है एंड दैट यू थिंक शुडंट बी देयर, कि मतलब यार ये चीज अगर निकाल दे एलिमेंट, इट्स काइंड ऑफ यूजलेस इन टर्म्स ऑफ कि उसकी इट्स सब्जेक्टिव. So what would be some of those things जो आप कहते हो कि यार इसको नहीं, this is something that you shouldn't put in your resume? Okay, so in my opinion, focusing too much on the tools is not a very good thing. So especially मेरे ख्याल से वो tools हमें mention वगैरह नहीं करने चाहिए जो कि बहुत basic हैं, बहुत essentials हैं. उनके बारे में we shouldn't talk, we shouldn't write a lot about them. Like still बहुत सारे लोग I see बहुत ज़्यादा resumes होती हैं जिसमें still people have written about Microsoft tools, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. So those kind of things are not very important, and they just consume the space. So you just have to be very specific and to the point. I think every words matter. Every word matters कि आप उसमें exactly लिख क्या रहे हैं. उसको just fill करने के लिए resume को उसमें just don't add things that don't really matter or don't add any kind of value. Sahi. Okay, I think that's a very fair point. And Sabha, what about you? We can start with the do's and then the don'ts. आई थिंक जैसे अली ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस पार्ट से कि आपको अपनी जो आप स्पेशल स्किल लेकर आ रहे हो ना टीम में, यू हैव टू एक्चुअली ऐड दैट कि आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है. हर बंदे डिज़ाइनर तो आपको बहुत सारे से मिल जाएंगे, बट आप किस लिए स्टैंड आउट कर रहे हो या फिर आप किस लिए अपने आप को सेल कर रहे हो, तो फिर दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. फिर दूसरी चीज़ कौन सी होती है, वो इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप अपने रिज्यूमे जो उनसे देते हो उसमें हाई लेवल आप अपनी सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करो, लेकिन वो ये ना हो कि आपके 20 पेजेस का रिज्यूमे हो
और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो सी है वो सिर्फ मे बी एक पेज में भी कंसोलिडेट हो सकती थी या फिर 2 पेजेस में हो सकती थी। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट जो मैनेजिंग या फिर जो मैनेजर होता है, हायरिंग मैनेजर होता है, उसके टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको, बिकॉज वो बहुत सारे से रिज्यूमे से गुजर रहा होता है, और अगर उसने देखा कि 20 पेजेस का है तो दे वॉन्ट इवन गो इन टू इट। तो जितना भी अच्छा ना हो क्यों ना हो, तो again, since you are a designer, you know about user experience, so just use that. आपको वो leverage है कि आप वो use कर सकते हो, आपको human psychology का पता है, just use that, use headings and all of that stuff, जो basic design rules ही होते हैं, और उससे आप अपना रिज्यूमे को वो इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और जो चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, अगेन आई एग्री विद अली, कि जो आपके टूल्स होते हैं, एक तो वो, दूसरा ये कि जो उनसे आपने अपने परसेंटेजेस बनाए हुए होते हैं, या मेरी देयर आर समटाइम्स 1 to 10 कोई रेटिंग सिस्टम होता है, या फिर कोई बार्स होते हैं, दे आर कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, और हर बंदा उसमें अपने आप को तो एक्सपर्ट समझता है, बट अगर आप एक्चुअल डिफरेंट कंपनीज में देखो, हर कंपनी का एक डिफरेंट लेवल होता है। मे बी एक कंपनी के लिए सीनियर डिजाइनर वो जो 5 to 10 years का जिसका एक्सपीरियंस हो, और लेकिन दूसरी कंपनी के लिए सीनियर डिजाइनर वो जो 1 to 2 years का उसका एक्सपीरियंस हो। तो अगर इफ यू आर सेइंग यू आर रियली गुड प्रोफिशिएंट इन एट समथिंग, तो वो किसी कंपनी के लिए वो होगा कि 1-2 साल की चीज़ है, और किसी कंपनी के लिए वो मैटर करता है कि वो 5 to 10 years वाली चीज़ आपने अचीव की होगी, वो आपको उस तरह से जज करेंगे। तो मे बी जो चीज़ें जो सब्जेक्टिव होती हैं उनको लेट देम बी सब्जेक्टिव, और ट्राई टू अवॉइड देम, और फिर उसके बाद यू कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज और ड्यूरिंग प्रोसेसेस। तो वो वाली चीज़ें होती हैं विच आर डूज एंड डोंट्स। सही एंड आई थिंक सॉर्ट ऑफ आई थिंक योर स्किल सेट जो इन टर्म्स ऑफ अगर आप सॉफ्टवेयर का भी डाल रहे हो तो वो आपके पोर्टफोलियो में भी शो हो जाता है, योर एक्सपर्टीज। So like talking about portfolios very briefly, what do you think makes a very very good portfolio that stands out of the entire pool? इनिशियल लेवल पे, या फिर जब आप अपना डीप डाइव दे रहे होते हो? I think we can start off with the initial level because उसमें ये कि just the screening process में what is a portfolio that stands out? आई थिंक अ पोर्टफोलियो जिसमें एक आपको वैरायटी नज़र आती है कि आप किस तरह से डाइवर्स, वही अगेन अली वाली बात कि आप किस तरह से वैल्यू ला रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह में, और सिर्फ यही नहीं कि आपने शो किया हो कि मैंने मे बी यू आर जस्ट चेकिंग ऑफ द लिस्ट कि मैंने इन 100 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। जस्ट पिक आउट द वेरी बेस्ट वंस, और उनको आप बताओ कि ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे मैंने काम किया हुआ है, और ये इस तरह से मैंने इन पे काम किया था, एंड दिस इज हाउ आई ब्रॉट वैल्यू इनटू दिस। उस प्रोजेक्ट का खुद थोड़ा सा बैकग्राउंड देना, बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज अबाउट ईच प्रोजेक्ट या फिर ईच प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़, तो यू हैव टू गिव देम अपना बैकग्राउंड, थोड़ी सी वो समराइज फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप अपना रोल बताओ। इनिशियल जो उनका पोर्टफोलियो होता है, आई थिंक उसका अगर आप अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स बता दो, डू नॉट गिव एवरीथिंग अवे, पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे बेशक, लेकिन बट समराइज फॉर्म जस्ट टू गेट द अटेंशन, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा तो फिर उसमें आप फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Okay, all right. And Ali, you said that you are looking at people online, उनकी जो online profiles होती हैं. So, you know, what attracts you? Okay, you know, this is the person that I at least want to sort of, you know, deep dive into, okay, what the work is, and then potentially hire him or her. Yeah. Sure. So I think सबा ने काफ़ी वही points शेयर किए हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था, but I think one more thing that I wanted to add is कि quality बहुत matter करती है, so you don't want to add everything that you have done. So उसमें क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ वो मेंशन करें जो आपने वाकई जिस पे आपकी वैल्यूज़ रही हैं एडिड, और जिसमें आपने काम किया है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, तो चांसेस आर के वो हायरिंग प्रोसेस में वो इतना अच्छा काउंट नहीं होगा। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और स्पेशली पोर्टफोलियो पे मैं स्पेशली जो फ्रेश जो लोग होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स वगैरह, दे यूजुअली डोंट हैव मच पोर्टफोलियो
to show. But I would still advise if you don't have anything to show, just build something, just design something which can be some inspirational stuff, or any redesign of some popular famous product or whatever you like, और उसको आप एक्सप्लेन कर सकें अपने पोर्टफोलियो में भी और उसके बाद अपने इंटरव्यू प्रोसेस में भी. So it doesn't have to be the actual some project, but it can be just something inspirational, and that can also grab the attention, and that can also tell कि आप किस तरह से किसी चीज को लेके चल सकते हैं. थोड़ा सा मैं रेज्यूमे पे भी थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा. आई थिंक सबा ने एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे मेंशन किए थे. इसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी रेज्यूमे है, डेट्स इसको आप अगर एक प्रोडक्ट के तौर पे कंसीडर करें, और जो हायरिंग मैनेजर और एचआर के लोग हैं उनको एंड यूजर के तौर पे कंसीडर करें, एंड देन थिंक अबाउट के किस तरीके से वो आपके रेज्यूमे को स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं. उनका वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो क्या होगा. सो इट शुड बी एट द एंड ऑफ द डे वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, बहुत क्लियर टू द पॉइंट वहां पे आनी चाहिए, ताकि कोई भी जो उस रेज्यूमे को पढ़ रहा है उसके लिए इजी हो टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं. I think those are very, very good points. I think for people who are also applying to jobs, and then also the thing that you mentioned for junior designers in their portfolios, because ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि even for entry level positions we don't have work. So I think building a side project just shows a lot of your passion as well. कि you're passionate enough to build something that probably doesn't have any other value, like monetary value वगैरह आपकी नहीं drive हो रही, but just for the experience. So that was about the screening process. I think the most important bit, the interview. Sabah, we'll start off with you because Keep Kraken has a very sort of a robust sort of an interview process के multiple rounds के हो रहे होते हैं. So उसके अंदर if you could just briefly touch upon कि जो multiple interviews हो रहे हैं उसके अंदर high level what are the things that each interview sort of evaluating, right? So उससे क्या चीज़ आप drive कर रहे होते हैं that then collectively becomes a deciding factor. आई थिंक जो इनिशियल होता है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग स्क्रीन कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स के, कौन से कैंडिडेट्स आर गुड इनफ. कम्युनिकेशन, एक तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दूसरा ये कि इफ यू आर एबल टू सेल योर आइडिया और नॉट. अगर आप अपना ही प्रोडक्ट जिस पे आपने काम किया हो या आप अपना डिजाइन नहीं सेल कर सकते, तो फिर चांसेस आर कि आप अपने स्टेक होल्डर्स वगैरह को भी अपना डिजाइन नहीं सेल कर सकोगे, और फिर आप थोड़ा सा मतलब कि आपको पुशबैक जैसे ही मिलेगा आप इजीली उसको ले लोगे, या फिर जब आपको कोई कहेगा कि मेक इट पॉप, यू विल ट्राई टू मेक इट पॉप. और मेक आई थिंक एक या तो वो वाली चीज होती है कि आप अपने डिजाइन को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैं कम्युनिकेशन की बात करी तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हर कंपनी के लिए इट डजंट अप्लाई कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो. लेकिन कुछ कंपनीज के लिए ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत मैटर करता है. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के कुछ कंपनीज के लिए वो कर रहे हो, उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती. उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना आइडिया किस तरह से सेल कर रहे हो एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट और नॉट. तो फिर सबसे पहले कम्युनिकेशन वो चेक होती है आपकी. दूसरी चीज़ ये कि फिर आपके आइडियाज़ आर द वर्थ इट, कि आप जो भी अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो वो किस तरह से, हाउ डिड यू लैंड ऑन दिस. या आपका फिर दूसरा ये कि अगर आप उस जो भी आपका वर्क प्रोसेस था वो क्या था, आपके वर्क प्रोसेस को देखा जाता है कि आप कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हो. फॉर एग्जाम्पल मे बी आप किसी उस पर काम कर रहे हो, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, और आपने यूजर की प्रॉब्लम्स ही को ना समझा हो, या आपके गोल्स ही उसके अराउंड ना हो, आपके गोल्स आपके अपने पर्सनल चीज़ों के अराउंड हो कि मैंने डिज़ाइन, आई जस्ट हैव टू मेक दिस प्रिटी, देन दैट्स नॉट अ गुड गोल. सॉरी, एक्सक्यूज मी. That's perfect. I have a really bad throat. So thank you for being here. Yeah, I think you can sort of take over. Yeah. Okay, so I think there are some general tips regardless कि आप डिज़ाइनर हैं या कुछ किसी और रोल में हैं, and one of them is जो जैसे सबा ने mention किया is the communication, and I think that is the key
कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. इसमें I think a couple of more points I wanted to add in general kind of tips के especially understand कि जो interviewer है उसने क्या questions किए हैं उसको note कर लें अपने पास या उसको रिपीट करें टू मेक श्योर कि आप वही समझे हैं जो इंटरव्यूअर ने पूछा है एंड मेक श्योर कि आप उसके अराउंड ही बात करें विच इज सो जनरली होता ये है कि जब मैं मुझसे कुछ पूछा जा रहा है तो मैं उससे हट के किसी और चीज़ पे बात करना शुरू कर दूंगा और एट द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन मेरा वो जो क्वेश्चन था वो वहीं पे रह जाएगा और वो आंसर नहीं होगा. सो ट्राई करें कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बिल्ड करें विद द इंटरव्यूअर. सो जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसके अराउंड बात करें, उसको अच्छी तरह से समझें एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज टू उसको अंडरस्टैंड करने में तो आप just ask again, just make sure that you have understand it correctly. So that's a kind of a general tips जिस पे मेरे ख्याल से हर एक को फोकस करना चाहिए. अगर हम इसके अलावा अगर हम इसके अदर स्किल्स वगैरह पे फोकस करें इंटरव्यूज के अंदर तो आई थिंक अगेन टूल्स जो हैं वो इतना मेरे ख्याल से मैटर नहीं करते, स्पेशली जो जूनियर्स और फ्रेश कैंडिडेट्स हैं. बट आई थिंक फॉर मीडियम और सीनियर कैंडिडेट्स आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों आप यूज़ कर रहे हैं. सो इट डजेंट मैटर कि आप एट द एंड कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं. आप एडोबी के कोई टूल्स हैं या कोई और आप कोई स्केच या फिग्मा या कुछ टूल कर रहे हैं, बट यू शुड हैव अ रीजन कि आपके पास एक सॉलिड रीजन हो, आप कन्विंस कर सकें कि ये टूल मुझे बेहतर लगता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. but in my opinion कोई भी नया टूल आता है and there are lot of tools coming almost every week जो आप within week और maximum within a month आप उसको learn कर सकते हैं and you can start really working on them. So वो इतना matter नहीं करते, but the matter more is the obviously the soft skills कि आप उसमें हम देखते हैं नॉर्मली कि आपकी अडॉप्टेबिलिटी कैसी है और दैट इज बेसिकली कि आप ट्रेंड्स को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, फीडबैक को आप किस तरीके से लेते हैं. उस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में आप पर्सनल नहीं हो जाते, किसी भी क्वेश्चन को लेके आप ऑफेंडेड नहीं हो जाते और इवन ऑफेंडेड होने से पहले यू आर ओपन कि जो भी फीडबैक आ रही है मैंने उसको बड़े ओपनली उसको अंडरस्टैंड करना है. डिज़ाइन क्रिटिक को आप किस तरह से देखते हैं, दैट्स वन ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि आप फीडबैक को किस तरह से वैल्यू देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते, और अगर आप उसमें डिफेंसिव किस तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे. तो दैट्स समथिंग जो कि हम उसको काफ़ी देख रहे होते हैं, स्पेशली इन द सर्विसेज डिज़ाइन व्हेन यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. सो क्लाइंट्स की तरफ से किसी किस्म का भी फीडबैक आ सकता है. समटाइम वो काफ़ी डिसेंट होता है, समटाइम वो इतना अच्छा फील नहीं हो रहा होता, बट हाउ यू डील विद इट इज मैटर्स अ लॉट. ऑल्सो एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा इज अबाउट द टर्मिनोलॉजीज जो कि हम डिज़ाइन इंडस्ट्री में डिफरेंट जो हम जार्गन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी नॉलेज होना मेरे ख्याल से इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, बट it still matters because it helps you to communicate with the team और overall जो communication है वो इसमें help करी होती है. सही है. I think those are very important points, and also sort of keeping in mind जो design critique या feedback को किस तरीके से candidates process करते हैं, right? Because design is a collaborative field and you'll be working with different people, different stakeholders. So एक communicating जो end पे आप बना रहे हैं, so whatever you've designed, sort of getting it effectively translated into the product eventually. I think उसके लिए communication is key. Because you'll be talking to engineers, you'll be talking to PMs, product managers वगैरह. So I think that's a very important thing, and also I think feedback के point of view से, because it's just not related to design. I think किसी भी तरीके से if you want to grow in any profession, I think feedback is something that we as humans should know how to process. So yeah, I think those are very valid points. Yeah. Sabah, are you better now? I hope you are. Yeah. Sorry, I have to grab water. Okay.
Actually, I would like to add something here. जो अली ने और आपने बात कर रहे थे कि it's really important कि आप feedback किस तरह से ले रहे हो और design critique किस तरह से ले रहे हो, क्योंकि I think अब हम लोग ये इस तरह से लेते हैं कि since हम लोग का कल्चर इस तरह से है कि हम लोग आप करके भी बात करते हैं एक दूसरे से, तो थोड़ा सा एक दूसरे की फीलिंग्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि हर्ट ना करें, बट जब डिजाइन आता है इट्स इन बिल्ट कि हमारा कल्चर है इस तरह से, तो जब भी कोई वो भी आता है, कोई डिजाइन क्रिटिक आती है, तो फिर अक्सर अगर हम लोग ऑफेंड हो जाएंगे तो फिर उससे थोड़ा सा वो आता है कि हाँ ये मे बी उस तरह से डिजाइन क्रिटिक नहीं ले रहे, डिजाइन फीडबैक नहीं ले सक रहे। डिजाइन फीडबैक या डिजाइन क्रिटिक इसलिए नहीं होती कि it's never about you. It's about the particular work that you have done. It's not about your overall work at all. जब भी कोई आपको डिजाइन फीडबैक मिलती है, मे बी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर ऑन अ पर्टिकुलर चीज, इट डजंट मीन कि कोई आपको ये कह रहा है कि यू आर अ बैड डिजाइनर। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए उस चीज को लेके। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। Yeah, and I think that that's a very important tip because interviews का बहुत ज़्यादा rigorous process होता है, right? And like for example, if you're applying to 10 jobs, you'll be going through a lot of interviews, and then eventually you would land one. So, but I think sort of processing rejection, and definitely we'll get to that बिल्कुल end पे कि how do you take rejection and how do you process it in a positive way, in a constructive manner. But I think as a designer, having this innate ability to कि मतलब प्रोसेस किस तरीके से करना है, बुरे लाइक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को। जो लोग डिजाइन स्कूल्स या फॉर्मल एजुकेशन लेके आए होते हैं, तो जूरीज वगैरह में बहुत ज्यादा डिजाइन क्रिटिक हो रही होती है ऑन अ वेरी हार्श लेवल, तो वो यू एंड अप हैविंग अ थिक स्किन। लेकिन आई थिंक एज यू गो इन टू द करियर और ये इस किस्म की, जब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो आपकी एक एसोसिएशन, एक प्रोफेशन, बिकॉज नाउ इट्स योर करियर, सो यू डू सॉर्ट ऑफ गेट पोजेसिव अबाउट इट। आई थिंक सेपरेटिंग योर वर्क फ्रॉम yourself is a very important tool to grow in the industry. I think another thing that I would like to talk about, just as Sabah, you mentioned, I think language in, if you're working here in Pakistan, मतलब English definitely is a medium of communication, लेकिन Urdu, and then as a UX, and this is something that's my perspective that I would like you guys to comment on. As a UX designer, if you're working on a local product, उसके अंदर you'll be interacting with users जो कि diverse background से आ रहे हैं, जिनकी language, जिनकी literacy rate are not the same as literacy level are not the same as yours, right? So उसमें I think English को थोड़ा सा deprioritize करना as a medium of communication becomes very important. लेकिन काफी सारे लोग, what I've seen is कि they don't take it like that, they don't understand it like that. So how important do you think that is? कि language की वजह से confidence या applying और barrier to entry अपने लिए खुद create करना? I think it is really important कि आप जो भी आपका यूजर होता है, आप उसके साथ उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो, क्योंकि अगर आप उनसे एम्पथाइज नहीं कर रहे, कि आप उनके उसमें नहीं आके, उनके सर्कल में आके आप उनके शूज में, व्हेन यू आर नॉट इन देयर शूज, तो आप उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर देम, और how are you going to relate yourself with them? ये बहुत important basic I think design वो one of the basic design rules है कि आपको उनसे empathize करना अपने यूजर के साथ, और अगर आप उन्हीं की लैंग्वेज भी में नहीं कर रहे, और and if you are feeling like कि आपको इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो फिर मतलब कि I don't think so कि मतलब it's pretty straightforward, then you don't care about the user, and if you don't care about the user, then you don't care about the product. So that's as simple as it is. Yeah. Okay. And Ali, do you have, because you work with the Pakistan पे भी काफी सारे products में, so what about you? Yeah, I second Sabah in this because empathy is at the end is the very very important thing to have. और उसमें अगर आप empathize नहीं कर पा रहे, तो आप नहीं understand कर पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको किस तरह की कॉपी की समझ आएगी, किस तरह की वो प्रोडक्ट्स को यूज कर चुके हैं, और किस तरह से वो ये सारी नॉलेज को अडॉप्ट करेंगे जिस तरह जो आप बताना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द की
or that's also very important during your hiring during this interview process, जिसमें जब आपसे कुछ questions किए जाते हैं related, तो you first go and try to understand कि आपकी audience क्या है, और you maybe you wanna ask questions, and it is a very good practice अगर आप question करें interviewer से भी कि ये किस तरह के लोग हैं, या share your thoughts कि मेरे ख्याल में ये इस तरह की ऑडियंस हो सकती है, am I correct or not, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड करना एंड टू कम्युनिकेट to the hiring managers and the interviewers के मैं इस चीज को इस तरीके से समझाऊं, and that is going to reflect my on my next process, next steps, तो वो चीज I think very बहुत important है. I think and you sort of like touched based on किस तरीके से hiring managers से questions पूछना and stuff like that, and that's I think a very important thing, because interviews usually how they're perceived as is the hiring manager asking questions, right? But her interview के end पे there is that question where the hiring manager asks if you have any questions for me, and so what do you think a candidate should be ideally asking? What are the things that जो आपको first off कि ज़्यादातर लोग क्या सवाल पूछते भी या नहीं पूछते, and B, what should be the things that they should be asking? So Sabha, you can start off on that. I think it's really important कि इंटरव्यू जो है ना, बंदा ये ना समझे कि इट्स अ वन वे कॉन्वर्सेशन, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, और यू शुड टेक दैट वे. आई नो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा कल्चरल वो गैप भी आता है, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि अगला बंदा अगर इफ ही इज इन हायरिंग पोजीशन तो हमें उन्हीं की बात सुननी है. जैसे हम लोग अक्सर बड़ों की भी बात सुनते हैं, तो फिर हम लोग मौका देते हैं बस बोले या फिर वो. तो आई थिंक वो हमारा कल्चरल वो है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप भी उस कंपनी के अंदर जा रहे हो. सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपनी आपको हायर करी है, यू आर गिविंग योर होल सेल्फ टू दैट कंपनी. तो आपने खुद भी पूछना है उनसे कि अच्छा आप लोगों का कल्चर किस तरह का है, आप लोग किस तरह से काम करते हैं, आप लोग किन टूल्स पे काम कर रहे हैं या फिर क्यों उन टूल्स पे काम कर रहे हैं. फिर उसके बाद ये कि आप लोगों के ये यूजर्स हैं, तो इन यूजर्स से आप इंटरैक्ट किस तरह से कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल कंपनीज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपके ऑब्वियसली आपका एक बहुत बड़ा यूजर गैप आ जाता है कि आप अगर यूएस के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको यूजर्स का उस तरह से नहीं पता चलता. तो यू आस्क देम द क्वेश्चंस कि अच्छा फिर आप लोग यूजर्स को किस तरह से स्टडी करते हैं. फिर इस तरह से ये एक टू वे कॉन्वर्सेशन होती है. आई वुड ऑलवेज इंकरेज कि लोग पूछें, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो उनसे होती है उससे भी पता चलता है कि अच्छा ये बंदा है कि ये क्वेश्चंस पूछता है, सो ही इज क्यूरियस अबाउट थिंग्स ऑटोमेटिकली. तो आपको लगता है कि अच्छा अगर ये प्रोडक्ट पे काम करेगा ना, तो फिर ये इक्वली क्यूरियस होगा और ये उतने ही क्वेश्चन पूछेगा. तो मतलब यूजुअली ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है कि आप पूछ रहे हो क्वेश्चंस इनिशियली, बजाय के यू गिविंग द हायरिंग मैनेजर स्पेसिफिक टाइम के अच्छा वो मुझसे कब क्वेश्चन पूछेगा तो आई कैन आस्क द क्वेश्चंस. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एनी टाइम इफ यू हैव दोस क्वेश्चंस. ऑब्वियसली अगर आपकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें आप एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछोगे तो दैट्स ऑब्वियसली वो चीज गलत होती है. बट अगर आप रिलेटेड क्वेश्चंस है तो जस्ट आस्क देम ऑन गोइंग उसमें ही. और इनिशियली आप इवन if you don't want to be, if you think this is not a polite way to do this, आप अपने मैनेजर जो भी हायरिंग पार्टी होती है आप उससे पूछ लो कि इज इट ओके इफ आई आस्क क्वेश्चंस जो भी बीच में आते हैं, या फिर Q&A सेशन बिल्कुल एंड ही पे है, तो यू विल नो कि आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं. सही. Okay, I think that's a pretty interesting tip. And Ali, what about you? So I think same answer, but इसमें मेरे ख्याल से obviously you want to know about के टीम काम कैसे कर रही होती है. You must ask question, or you should ask about the culture, how team works, or especially how we interact with the end user, target audience वगैरह, उसके साथ कैसे हम interact कर सकते हैं या करते हैं. और also I think one of the most important thing is to understand कि जो business challenges क्या हैं, जिस पे आपने focus करना है at the end of the day. Stakeholders कौन है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं. और उसकी knowledge at the end लेना बहुत ज़रूरी है, because I as a product manager
वुड लाइक टू जो भी हम डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, मैं उसमें एट द एंड अपने जो प्रोडक्ट के जो मैट्रिक्स हैं, मैं उनके साथ उसको देख रहा होता हूँ कि एट द एंड हमारी प्रोडक्ट किस तरह से इम्प्रूव हो रही है और हमारा बिजनेस कैसे बेहतर हो रहा है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी, और उससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस, तो दैट इज रियली हेल्पफुल। सही and I think that's I think business ambit because it's eventually design and business matrix to align somewhere, Yeah. and one has to profit the other. And I think on the basis of questions, sort of Azima asked a question. Sabah, I think you can answer this. Is it necessary to have a prior knowledge of fleet management when applying for keep trucking? So industry knowledge is related. नॉट एट ऑल। ज़रूरी Okay. नहीं होता कि आपको हर चीज़ की यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हाँ, इनिशियली आपको थोड़ा-सा अगर आपको कीप ट्रैकिंग का इतना पता है कि हाँ, वो फ्लीट मैनेजमेंट वो है, आई थिंक दैट्स गुड। आपने अपना थोड़ा-सा होमवर्क किया होता है कि आपको थोड़ा-सा पता हो यूज़र्स का या फिर वो भी, लेकिन वो इनिशियल उसके लिए नहीं ज़रूरी होता। जो आप आई थिंक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जो हमारा ऑलमोस्ट 4 आवर्स का होता है, उसके लिए इट बिकम्स क्वाइट नेसेसरी क्योंकि आप आंसर्स या आप सॉल्यूशंस जो आपको जैम सेशन वगैरह आप कर रहे होते हो सीनियर डिजाइनर्स के साथ, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आई थिंक जो उनका फर्स्ट इंटरव्यू होता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ताकि वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और फिर इसके लिए हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में कि जितने अच्छे तरीके से जो ऑलरेडी हायर्ड लोग हैं उनको पता होगा फ्लीट मैनेजमेंट की नॉलेज का या फिर जो सारे यूजर्स का या इंडस्ट्री का आइडिया होगा उतना आपको आइडिया नहीं होगा, और दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो इसलिए वी वांट टू एक्सपेक्ट दैट एट ऑल। Sahi. And so I think it has a lot to do with industry. I think general industry knowledge, and as designers, I think it's very fluid because you are moving from one industry to another. So just the ability to sort of adapt and quickly learn things by, I think, asking the right questions and stuff like that. That really helps. So we've talked a lot about the interview and everything. What do you look for when you're hiring a candidate? जब आप finalize कर रहे होते हैं, what are the key metrics जो आप कहते हैं, yeah, this person fulfills all of these, and hence why this is the person we're going to shortlist eventually. यार आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो सा होता है वो आपकी कम्युनिकेशन हो गया, हाउ यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज और ओवरऑल द कम्युनिकेशन योर सोल्यूशन। और फिर उसके बाद सेकंड जो सा होता है आपका वो होता है मेथड होता है विच यू आर यूजिंग फॉर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये होता है कि आपके जो भी अगर फॉर एग्जांपल डिज़ाइन असाइनमेंट मिलती है या आपका जैम सेशन होता है उसमें आपको एवेलुएट किया जाता है कि वो बंदा कितना पैनिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, इफ़ दे हैव टेकन द प्रॉब्लम रियली सीरियसली या फिर वो उस पे कितने इजीली उसको कोप कर रहा है उस प्रॉब्लम के साथ, वो बहुत मैटर करता है। फिर क्वालिटी पे आपको जज किया जाता है, फिर आपके प्रोसेस एंड एक्सप्लोरेशन, फिर ये कि आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग क्या है, आप कोलैबोरेट किस तरह से कर रहे हो और आप कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हो। इन द एंड ऑब्वियसली आप यू कैन बी अ रियली ग्रेट डिज़ाइनर, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इट्स अ डील ब्रेकर यूजुअली। तो again quality communication, process, product thinking, user thinking, all of this, इन सब से मिला के आपका जो है ना वो आई थिंक सारे पॉइंट्स बनते हैं टू गेट हायर्ड। Sahi. And Ali, what about in venture type when you're hiring somebody? Okay. Yep, sure. So I think the key thing that I look for is the potential, कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, जो कि आपके पूरे हायरिंग प्रोसेस में वो रिफ्लेक्ट होता है, नज़र आ जाता है। और उसमें भी ऑल्सो सी कि कितने कितने आप हार्ड वर्किंग हैं, कितनी आप मेहनत कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े। ऑब्वियसली यू डोंट ऑलवेज वर्क डे एंड नाइट एंड स्पेंड वीकेंड्स, बट sometime it is required, and in that case how would you react, or how would you present yourself? तो वो चीज़ I think बहुत important है। Second thing is the, I think, adaptability to the trends, to the team tools, feedback, उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे ही आप एक टीम को ज्वाइन करते हैं और आप जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। समटाइम आपकी
आपकी टीम चेंज हो जाती है, हो सकती है कभी आपके क्लाइंट्स चेंज हो सकते हैं, कभी आपका लाइन मैनेजर या आपके जो सीनियर्स हैं वो नए आ सकते हैं, फिर नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना पड़ सकता है, तो आप उस सब चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं और Hmm. कैसे आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक द थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली द कम्युनिकेशन, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आई थिंक दो है। नंबर वन इज के आपका पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस जो आप डिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यूज एंड विद योर पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे, Hmm. एंड सेकंड थिंग इज के कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे होते हैं, किस तरह की वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से अपने फेलियर्स को और अपनी लर्निंग्स को वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली अगर आपकी अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको कितना, आप उस पर कितना प्राउड हैं या कितना आप उसको एग्जैक्टली किस किन मेथड से और किन तरीकों से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। So ownership is at the end of the day very important as well of the work that you do. Yeah. Yeah. Yeah, okay. So I think these are pretty. This would be very very good for people who are actually applying not just to keep track in our venture type, but then to any design team, be it here or be it abroad. And so the panel is about get hired, and that is the theme. But I really do want to touch base on what if you don't get hired, right? If you're not hired. So, what do you think is the best way forward for a candidate to take the rejection? And what are the tips that you would give to them as hiring managers? आई थिंक जो उनका पूरा हायरिंग प्रोसेस होता है या फिर जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, Hmm. उससे वो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस होता है और लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो टेक इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अक्सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्सर मैं इंटरव्यूज वगैरह देती हूँ और जगह पे जस्ट टू सी के मतलब अच्छा क्या प्रोसेस क्या चल रहा है, और एम Hmm. आई इनफ या एम आई केपेबल इनफ, या मैं कहाँ पे मेरे गैप्स आ रहे हैं, या फिर लोग किस तरह से जज करें, या फिर लोगों को आप में क्या चीज़ चाहिए। Hmm. तो आई यूजली डू दैट फॉर लाइक एक्चुअली जस्ट देखने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और अगर इफ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई एक्चुअली कंसिडर इट। तो Hmm. ये नहीं कि मैं हायरिंग मैनेजर्स का टाइम जाया करी, आई डू नॉट वांट टू डू दैट, बट या जो अच्छी कंपनीज होती हैं आई ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई देयर। Hmm. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, आपको अगर रिजेक्शन मिलती है या फिर इन केस आप नहीं परस्यू करते उस अपॉर्चुनिटी को, तो यू आस्क द क्वेश्चंस कि अच्छा अगर मेरी हायरिंग नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, अगर आपको आपकी हायरिंग नहीं होती। एंड इट्स रियली Hmm. इंपॉर्टेंट आपको अब एक तो हायरिंग मैनेजर के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दिस फर्स्ट, Yeah. बजाय कि आप एक जर्नल ईमेल भेज दो। कीप ट्रैकिंग में यूजुअली हम लोगों की यही प्रैक्टिस होती है कि वी डू टेल देम कि कहाँ पे गैप्स आ रहे थे जिसकी वजह से हायरिंग नहीं हुई, और नेक्स्ट टाइम आप क्या चीज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव, ताकि फिर उसके बाद आप हायर हो सको। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हायरिंग मैनेजर की एक तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो खुद से बता दें, अगर इफ़ यू गाइज इफ हायरिंग मैनेजर्स आर नॉट डूइंग दिस, जो कि Hmm. यूजुअली पाकिस्तान में होता है, तो Yeah. आप ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यू शुड रीच आउट टू देम एंड आस्क देम कि क्या रेड फ्लैग्स थे या फिर क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर उसके बाद आप उन पे फिर फर्दर आप काम कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। आप इसको Yeah. अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी लो, बजाय के आप इस पे वो हो जाओ, थोड़ा सा ऑफेंड होके बैठ जाओ कि यार, या फिर सैड हो जाओ कि नहीं है, Yeah. मे बी आई एम नॉट केपेबल इनफ। Yeah. एवरीवन इज केपेबल इनफ। इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम के लिए या फिर उन जो मैचिंग वो होती है वो आपकी सही फॉर्मूला नहीं बन रहा होता, मे बी Yeah. इट्स जस्ट दैट। तो Definitely. इसलिए जस्ट आस्क देम, आस्क द क्वेश्चंस। कोई भी इतना वो नहीं होता कि वो आंसर ना दे, जस्ट Hmm. आस्क देम। और ऑब्वियसली फिर अपनी फीडबैक लेने के लिए आप तैयार हैं। इफ यू आर आस्किंग फॉर क्रिटिक, देन बी रेडी फॉर अ क्रिटिक। Yeah. That, तो that I think, yeah, definitely, and I think it has a lot to do with the thing that you guys mentioned earlier. How do you process feedback, right? या So I think it's a huge reflection of that. And Ali, what about you? And about in venture type, do you guys reach out if the candidate is not hired, and then have you ever been reached out by somebody that you didn't hire? Yeah, okay. So I think first, अगर आप hired नहीं होते, if you don't get hired, तो it's not always about you.
it might be about the company or maybe the hiring managers, उनके fault भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जिस role के लिए आपको consider कर रहे थे शायद वो at this point of time आपके लिए fit नहीं है, which is not necessarily your fault. हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसी points हों जिसमें आप maybe lack कर रहे हो at this point of time, but it can be also about the current role और जिस तरीके से hiring manager उस information को perceive कर रहा है, but regardless आप problems क्या हैं या अगर आप hired नहीं होते, I think it is a good practice कि अगर आप if you ask the feedback, चाहे आप ऑफिशियली फीडबैक ले लें या आप डायरेक्टली उस हायरिंग मैनेजर को अप्रोच करें. मुझे काफ़ी दफ़ा लिंक्डइन पे और समटाइम्स फेसबुक वगैरह पे वो लोग अप्रोच करते हैं और दे डू आस्क के क्या रीज़न थी जो ये सक्सेसफुल नहीं रहा ये सारा प्रोसेस, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उनके साथ फीडबैक शेयर करूँ, समटाइम्स इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशंस के these are the areas जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहे, बट उसके बाद भी अगर आपके पास अगर आप पूछना चाहें तो स्पेशली वेंचर टाइम में you must ask for the feedback. अगर it doesn't go well, if you don't get hired, तो just ask for the feedback, HR से बात करें and they will connect you with the hiring manager, or we would love to give you the feedback. Otherwise, just try to talk to them directly, and I'm sure that we will be able to share the feedback with you. But again, जैसे सबा ने कहा कि this is a learning process, so ये हो नहीं सकता कि आप जब भी इंटरव्यू दें तो आप पहले इंटरव्यू में ही आप सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट तरीकों से, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कीप ट्रकिंग और वेंचर डाइव की अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस है, काफी सारी चीजें कॉमन भी हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस लॉजिक्स, जिस तरह से बिजनेस कीप ट्रकिंग का चल रहा है और जिस तरह से वेंचर टाइप काम कर रही है, तो देयर आर सम डिफरेंसेस, एंड आल्सो देयर आर सम डिफरेंसेस इन द हायरिंग प्रोसेस. तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर पर्सन सूटेबल हो फॉर एवरी काइंड ऑफ रोल, सो जस्ट टेक इट एज a positive sign. आप उसमें बहुत सारी चीजें improve कर सकते हैं, and you learn a lot at the end of the day. Not just you, but also the hiring team. हम खुद भी बहुत कुछ learn कर रहे होते हैं, और we sometimes try to improve our process, or we try to improve our questions and all the filtration process वगैरह. Yeah, I think that's very important, and also I know time हमारे 2 मिनट ऊपर हो गया, but I'm just going to take like 5 to 7 minutes more क्योंकि 2-3 सवाल भी हैं that we have to, I would love it if you guys could answer them, and also sort of building on the कि हर कंपनी का even within Pakistan जिस तरीके से हमने देखा था पिछले वाला जो पैनल था उसके अंदर the hiring process abroad is kind of structured in the US, right? In Pakistan हर एक का different है, so for example in Telenor or Easy Paisa it's very different. So you are talking to a senior expert, you have a design task, then your hiring manager is generally a non-designer, and then you're talking to the director, right? So it's a very sort of a different structure as opposed to जो venture dive या keep tracking में हो रहा है. So I think just sort of adapting and understanding the context जिसमें आप hire हुए हैं जिसमें आप hire नहीं हुए, I think is very important as well. So I'll just move on to the questions. That is, so first off, Javeria Musharraf, she wants to ask that does Keep Trucking hire fresh grads for design? And the same question for Venture Dive. Recently at Keep Trucking, हम लोगों ने कोई से changes किए हैं. We are hiring fresh graduates, but at internal level. ठीक है. Recently हम लोग जो उनसे fresh graduates थे उनको directly hire भी कर रहे थे. We have trained a lot of fresh graduates. We still have them in our team. But yeah, recently we have changed our processes. सही. Okay. And what about in Venture Dive? So venture dive में ये थोड़ा सा change होता रहता है. Sometime we do and sometime we don't. It depends कि इस वक्त requirements क्या हैं और किस तरह से हमने आगे move करना है team को लेके. At this point of time, we are considering the fresh grads. ठीक है, सही है. And are there any specific positions that fresh grads can search up on Venture Dive की website?
and apply to them if I'm you I'm have not any other sure. advantages. So I'm not sure कि अभी वेंचर डाइव हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है, मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया because we have closed many of them. But just reach out to us if you think you are a good candidate. You don't, especially in design, you don't have to wait for the position to get open in the designs. Okay, so basically, so all the junior designers or fresh grads can reach out to Ali. So Ali, Yeah, sure. yeah. So basically that, and then also, Richi wants to ask that if you have 6 or 1 year experience in design, how should we tackle the question of expected salary? जो कि आ रहा था बिल्कुल end पे. So I think I'm not the very best person for this. क्योंकि I think it's better if you ask some HR person. But I think you should make it very clear what your expectations are, and also it goes to the hiring or HR team as well. Okay, वो, if they set some kind of expectation at the start of the interview process. सही. Yeah. एक चीज I think which I want to add is कि think of this, जो भी आप एक्सपेक्टेशन बताते हो, एक तो आप ऑब्वियसली कंपनी के मुताबिक थोड़ा सा देखते हो कि आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप पाकिस्तान की कंपनी के लिए, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो जिनका पोटेंशियल शायद ज़्यादा होता और आपने कम एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी है, इट डजंट मीन कि वो आपको कम पे हायर करेंगे बिकॉज कंपनीज के कुछ बैंडविड्थ्स होती हैं. अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास एक बैंडविड्थ होती है, सीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बैंडविड्थ होती है, डिफाइंड होती है, और वो एचआर ने वो चीज़ें डिफाइन की भी होती है. तो अगर आप बता दोगे ना एक बैंड से कम भी अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी, तो इफ इट्स अ रियली गुड कंपनी तो आपको ज़्यादा ही देगी. वो ये नहीं करेगी कि अच्छा ठीक है आपने कम मांगे थे तो हमने आपको कम ही अब देने हैं. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट. तो वो जो उनसे एचआर होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं ये सारी चीजें, और डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द कंपनी. तो इसलिए आई थिंक पूछना, अगर वो पूछ लें एंड इफ यू थिंक यू डोंट हैव द राइट आंसर, इट डजंट लाइक उस तरह से इट डजंट मैटर, क्योंकि एचआर ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं काफी ज्यादा बैंडविड्थ्स. Yeah, exactly. वो pay parity and like keeping in line everything वो उस हिसाब से फिर चल रहा होता है. So and also I think another thing जो कि जिससे ये reflect हो सकता है, the salary survey that we conducted. So उसके ऊपर उसके results वगैरह once they're published, I think early October या whenever they'll be published. So I think that would be a very good sort of a benchmark जिससे वो देख सकते हैं कि market के अभी current क्या चल रही है. And then you can sort of base your decision market key values plus what value are you bringing in, and then sort of determine the amount that you want to ask for. So I think एक और चीज, सॉरी आई नो वी आर आउट ऑफ टाइम, बट एक और चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो years of experience नहीं, आपका काम की क्वालिटी मैटर करती है. बेशक आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, आपका काम की क्वालिटी इतनी अच्छी हो ना, तो आपको अगर आप 1 साल वाली एक्सपीरियंस वाली सैलरी बता रहे होगे ना तो शायद वो अनजस्टिफाइड होगी. तो आई थिंक years of experience से ज्यादा आपके अपनी वर्क क्वालिटी मैटर करती है. Definitely the skill set that you have. Sahi. So thank you so much, Ali. Thank you so much, Sabah. Thank you so much for taking out time on a Sunday morning for this. And I really hope this helped out everybody who was watching it, yeah, people who would watch it later on. So yeah, thank you so much. And Thank you, Sinem. Thank you. That's it. Bye. I love this.